Now we will start with the another topic, that is Clapeyron equation. This is very important equation. And what does this mean and what is it saying? Clapeyron equation. हम क्या पढ़ रहे हैं? We are studying the phase equilibrium. Phase equilibrium मतलब we have two phases, for example solid and liquid phase, which are present in equilibrium with each other. This equation, it is used to describe the phase of any single component system. Single component system, for example I have water is very good example, everywhere it fits. Water मैंने example लिया है. Water present in solid state, it is in equilibrium with water present in the liquid state. तो मैं क्या बोलती हूँ, जो ये Clapeyron equation है, it is the any equation, it is a equation which is applicable for one component system प्रेजेंट इन टू फेजेस. तो जो वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड है, कंपोनेंट शुड बी वन, फेजेस मस्ट बी टू. इस वाले सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगी ये, ठीक है. तो कंपोनेंट इट इज़ वन बिकॉज इट इज़ वाटर, बोथ साइड इट इज़ वाटर. फेज इज टू, वन इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एंड अदर इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट. तो एनी सच condition when you see component is 1 and phase are 2, we can apply this equation that is called as Clapeyron equation. And what is this equation? It is change, it is the effect of pressure and temperature. It is the variation of pressure or temperature किस चीज़ के ऊपर? On any system which is one component system present in two phases. But what is the important thing? That the two phases, they must be present in equilibrium. You can see examples here. I have taken 4 examples and all these things they are present in equilibrium. अब हम चेक करते हैं कि one component system है और 2 phases है. तो first example which I have taken, that is water, that is one component, liquid and gas both are present in equilibrium. तो we have one component, 2 phase at equilibrium. ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कंपोनेंट इज़ वन, phase are 2 and जो भी 2 phases are present, they are should be present in equilibrium with each other. ठीक है. Similarly you have water in the gaseous state, it is present in equilibrium with water in the solid state, both of them are present in the equilibrium. Similarly एक solid gas हो गया, एक gas और solid हो गया, सॉरी लिक्विड और गैस हो गया, गैस और सॉलिड हो गया. थर्ड क्या हो सकता है? वाटर इन द लिक्विड स्टेट विच इज़ प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द वाटर इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है. एक और एग्जांपल है वन क्रिस्टलाइन फॉर्म in equilibrium with another crystalline form. It is also one component, two phase system. For example, you have sulfur in the rhombic state, it is present in equilibrium with sulfur in the monoclinic. So these are the crystalline forms. Sulfur in the rhombic state in equilibrium with sulfur in the monoclinic. So here component it is equal to 1. क्यों? दोनों क्या है? ये सल्फर है. और फेजेस कितने हैं? 2 है. तो ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, लेकिन ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और ये वाले सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. तो फेज हियर फेज आर 2. ठीक है. और ये क्लैपeyron इक्वेशन क्या है? dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर. अब हम इसको ड्राइव करेंगे हाउ वी कैन बी कंक्लूडेड टू दिस इक्वेशन. तो मान लो हमारे पास क्या है? 2 फेजेस हैं, जैसे हमने ऊपर लिखे थे हमारे पास 2 फेजेस है. फेज 1 इट इज़ प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद फेज 2. फेज 1 इट इज़ प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद फेज 2. ठीक है. अब मान लो जो G है, आपको पता है G क्या चीज़ है? इट इज़ फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम. तो मान लो मेरे पास एक फेज है, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद फेज 2. अब ये जो फर्स्ट है इसके लिए मान लो G की वैल्यू है G1 और सेकंड फेज के लिए G की वैल्यू है G2. दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी फॉर फेज 1 इज G1 एंड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर फेज 2 इट इज़ G2. ठीक है. बट आपको पता है कि इक्विलिब्रियम जब भी आपके पास स्टेट आती है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जो डेल्टा G की वैल्यू है इट इज़ ऑलवेज 0. लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G इज इक्वल टू 0. और हमने कहाँ किया था ये कि जब हम पढ़ रहे थे कि फेज के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है. तो डेल्टा T शुड बी 0, डेल्टा H शुड बी 0 एंड डेल्टा G शुड बी 0. तो ये एक कंडीशन है. अब अगर डेल्टा G हमारे पास 0 है तो डेल्टा G किस किस का हुआ? ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दैट इज G2 माइनस G1. अगर ये 0 के बराबर है दिस मीन्स G2 इज इक्वल टू G1. मतलब जो गिव्स फ्री एनर्जी फर्स्ट फेज़ की है वही फ्री एनर्जी किसकी है? सेकंड फेज़ की है. लेकिन हमारे पास एक इक्वेशन है. क्या इक्वेशन है ये? इट इज़ इक्वल टू
G इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। G इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, अगर मैं वन की बात करूँ, अगर मैं G1 लिखूँ तो G1 इज इक्वल टू वी वन डी पी एंड माइनस एस टू डी टी। तो जो सेकेंड फेज है G2 क्या चीज़ है, G2 क्या लिख सकते हैं हम, इट इज़ वी टू डी पी माइनस एस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा S1, इट इज़ S1 dt। यहाँ पे आएगा G2 इज इक्वल टू वी टू डी पी माइनस S2 dt। ठीक है, ये आपने इक्वेशन लर्न करनी है, G इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। G क्या चीज़ है, फ्री एनर्जी चेंज, V इज़ द वॉल्यूम, P इज़ द प्रेशर, S इज़ द एंट्रोपी एंड T इज़ द टेम्परेचर है। ये एक इक्वेशन होती है G की। ठीक है, अब हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो वी कैन से G2 इज इक्वल टू G1। तो G2 क्या चीज़ है, वी कैन से V2 dP माइनस S2 dt इज इक्वल टू V1 dP माइनस S1 dt। V1 में इस तरफ ले आऊँ तो क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 इंटू डी पी इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इंटू dt। ठीक है, अगर मैं V को नीचे ले जाऊँ और T को यहाँ पे ले आऊँ, व्हाट विल हैपन, dP अपॉन dt is equal to S2 minus S1 can be written as delta S. Delta S upon V2 minus V can be written as delta V. So I can write this equation like this. dP upon dt is equal to delta S upon delta V. You know that delta S, what is this? It is the entropy change. और entropy change हमने क्या पढ़ी थी, delta S is equal to delta H upon T होता है entropy change. Entropy change is equal to Q अपॉन टी, दैट इज हीट चेंज अपॉन टेम्परेचर। तो हीट चेंज को ही हम क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी चेंज लिख सकते हैं, डेल्टा एच अपॉन टी। तो पुटिंग द वैल्यू हियर आई गेट डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डेल्टा वी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन विच आई हैव ऑल्सो रिटन हेयर, आई हैव नॉट रिटन फुल हेयर। तो अगर आप इसको अरेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये V2 माइनस V1 into dP is equal to S2 minus S1 into dt. When you arrange it, you get dP upon dt is equal to delta H upon T delta V. ठीक है, this is one of the equation and this equation single it is called as Clapeyron equation. अभी हमने क्लैशियस-क्लैपेरॉन की इस इक्वेशन को सिंपल यहाँ तक क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो व्हाट आई कैन से, इट इज़ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन एनी one component system where two phases are present in equilibrium with each other. Delta H here is the enthalpy of reaction or heat of the reaction. अब जो भी मैंने इक्वेशन लिखी थी, V delta V, what is delta V? Delta V is V2 minus V1. So it can be written here as delta P upon dt is equal to delta H upon T V2 minus V1. अब क्या चीज़ है ये V2 V1, हम डिफरेंट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं आपको बाद में बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव वाटर इन द लिक्विड स्टेट विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर इन द सॉलिड स्टेट। अब चेक करो कि ये वन कंपोनेंट सिस्टम है, येस इट इज़ वन कंपोनेंट बिकॉज यू हैव वाटर एंड वाटर हियर। दे आर प्रेजेंट इन टू phases. Which two phases? One phase is the liquid phase and another phase it is the solid phase. So again here C is equal to 1, P is equal to 2 and both of these phases they are present in equilibrium with each other. So we can efficiently apply the Clapeyron equation in this equation. तो क्या बन जाएगी equation? You have dP upon dt is equal to delta H. अब ये क्या प्रोसेस हो रही है? Liquid state it is going to the solid state और solid it is going into the liquid. जब liquid हमारे पास solid में जा रहा है तो कौन सी प्रोसेस हो रही है? फ्यूजन। तो कौन सी हीट है फ्यूजन की, हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो जो डेल्टा एच था उसकी जगह क्या लिखा मैंने, कितनी हीट चेंज हो रही है फ्यूजन प्रोसेस में, अपॉन टी एफ। कौन सा टी है ये, फ्यूजन के लिए। दैट मीन्स लिक्विड जब सॉलिड में गया कौन सी टेम्परेचर पे गया, दैट इज द फ्यूजन टेम्परेचर माइनस वॉल्यूम ऑफ, किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, लिक्विड एंड सॉलिड में से लिक्विड की वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो दिस इज द इक्वेशन विच कैन बी एप्लीकेबल। अब आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं, यू कैन बी गिवन डिफरेंट वैल्यूज़, टी एफ की वैल्यू दे दी, डेल्टा एच की वैल्यू दे दी और ये वैल्यूज़ दे दी और आपको कोई भी एक वैल्यू निकालने के लिए आ सकती है यहाँ से। ठीक है, अब अगेन we can again substitute the equation that come on to this equation, dP upon dt is equal to delta H upon T delta V. Now according to gas law we have PV is equal to RT. From here V is equal to RT upon P. Is it clear? तो अगर मैं V की
वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यू हैव आर टी अपॉन टी, टी यहाँ पे पहले था तो इट बिकम्स आर टी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। तो दिस इक्वेशन नाउ, total equation, it is called as the Clausius-Clapeyron equation. Is it clear? Clausius-Clapeyron equation. अगर मैं ये वाला p यहाँ पे नीचे ले जाऊँ तो what will happen? It will be 1 upon p dp upon dt is equal to delta h upon r टी स्क्वेयर एंड 1 अपॉन पी डी पी, इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं इसको, डी लॉग ऑफ पी, डी लॉग ऑफ पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वेयर. दिस इक्वेशन इट इज़ कॉल्ड एज द Clausius-Clapeyron इक्वेशन. जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इट इज़ द सिंपल Clapeyron इक्वेशन. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द Clausius-Clapeyron इक्वेशन. जब मैं v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर दूंगी फ्रॉम द गैस इक्वेशन, ठीक है. अब हम देखेंगे व्हाट इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ Clausius-Clapeyron इक्वेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पक्का आती है एग्जाम में, तो यू हैव टू रीड इट. दिस इक्वेशन डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूमेरिकल बहुत पूछते हैं इसमें से, ठीक है. नाउ वी विल स्टडी द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ Clausius-Clapeyron इक्वेशन. तो हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे. तो व्हाट इज दिस इक्वेशन, यू हैव डी लॉग ऑफ पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वेयर. अगर मैं अब t को यहाँ पे ले जाऊँ तो व्हाट विल हैपन, यू हैव डी लॉग ऑफ p इज इक्वल टू डेल्टा h को मैं साइड में रख देती हूँ, अपॉन r को मैं रख दिया, यू हैव डी टी अपॉन t का स्क्वेयर, ठीक है. तो अगर मैं इस डी टी अपॉन टी स्क्वेयर, ठीक है. अब अगेन अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी तो आई हैव इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम टेम्परेचर P1 टू P2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2. तो डी लॉग ऑफ P का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे व्हाट विल गेट, वी गेट लॉग ऑफ P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर इज कॉन्स्टेंट. सो इसको हम बाहर लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वेयर, ठीक है. अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो कितना आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन आर डी टी अपॉन टी स्क्वेयर, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, इट इज़ 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. तो जब हम इसको सॉल्व करें आई गेट लॉग ऑफ P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर. If we solve this, I get in the base T1 upon T2 और यहाँ पे आ जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है. तो दिस इक्वेशन इट इज़ द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द Clausius-Clapeyron इक्वेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द यूजेस, ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे Clausius जो हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म की तो यहाँ पे हमारे पास देयर आर टू प्रेशर्स, P2 प्रेशर, P1 प्रेशर, अगेन T2 टेम्परेचर एंड T1 टेम्परेचर. तो वी आर गेटिंग टू टेम्परेचर्स, टू प्रेशर्स. अब किस चीज़ को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं ये प्रेशर, P1 प्रेशर ऑफ फेज़ 1, P2 प्रेशर ऑफ फेज़ 2 एंड अगेन T1 टेम्परेचर ऑफ दिस फेज़ एंड T2 टेम्परेचर ऑफ दिस फेज़. तो अगर हमें दो फेजेस का टेम्परेचर और प्रेशर पता है, इसका भी टेम्परेचर और प्रेशर पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फ्रॉम हेयर, ठीक है. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ Clausius-Clapeyron इक्वेशन. इसी में हम देख लेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द Clausius-Clapeyron इक्वेशन, ठीक है. तो नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ Clausius-Clapeyron इक्वेशन. तो फर्स्ट हम लगा लेंगे कौन सा इक्विलिब्रियम लगाया था हमने, ये मान लो ये है फॉर द लिक्विड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. तो वी आर कंसीडरिंग फॉर लिक्विड in equilibrium with solid. Let us take the example of again water only. Water in the liquid state and water in the solid state. तो अगर मैं लगाऊँ इक्वेशन तो क्या बन जाएगी, I have log of P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच. अब डेल्टा एच क्या चीज़ है, यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड बन रहा है. तो लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, फ्यूज़न प्रोसेस बोलते हैं उसको. जैसे हमारे पास वेपर से हमारे पास लिक्विड बन जाता है या लिक्विड से हमारे पास वेपर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन. वैसे अगर आपके पास लिक्विड से आपके पास सॉलिड बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूज़न. जब हमारे पास सॉलिड से डायरेक्ट हमारे पास वेपर्स बन जाए तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज सब्लिमेशन, ठीक है. तो हम सब्लिमेशन लिखेंगे. तो अब ये कौन सी प्रोसेस है, फ्यूज़न. तो हम लिखेंगे डेल्टा एच फ्यूज़न डिवाइडेड बाय R that is constant upon T2 minus T1 upon T1 T2, ठीक है. अगेन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इसी इक्वेशन को Clausius इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं सिंपल. तो वहाँ क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन
dt इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूज़न डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कौन सा, फ्यूज़न, अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये एक ही चीज़ है, ये दोनों इक्वेशंस। या तो आपको दो वैल्यूज़ दी हैं टेम्परेचर प्रेशर की, आपने इसको ये पुट करनी है, या आपको ये पूरी वैल्यू दी है या ये दी है, आपको इसमें से कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट दैट। तो यूज़ क्या हुआ, इफ़ टू वैल्यूज़ ऑफ, इसका टेम्परेचर दिया है, इसका प्रेशर दिया है, इसका टेम्परेचर दिया है, इसका प्रेशर दिया है, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फ्यूज़न, मतलब व्हाट इज़ द हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपकी बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप चेक करना न्यूमेरिकल्स। तो यू कैन बी आस्क्ड दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फ्यूज़न, हीट ऑफ फ्यूज़न कैलकुलेट करने के लिए कहा गया आपको, ठीक है। वैसे मान लो मेरे पास है गैस, दैट इज़, गैस को छोड़ो, आई हैव लिक्विड, लिक्विड गोइंग इनटू वेपर फेज। लिक्विड क्या चीज़ है आपके पास, वाटर लिक्विड, इट इज़ गोइंग इनटू वाटर वेपर। अब वाटर ही नहीं हो सकता, कोई और सब्सटेंस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं वाटर ले रही हूँ, ठीक है। इट इज़ गोइंग इनटू वेपर फेज। तो इफ़ आई पुट इन दिस इक्वेशन आई गेट log ऑफ P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब ये जो लिक्विड जब वेपर में जा रहा है, ये कौन सी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज वेपोराइजेशन। लिक्विड से जब वेपर्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। तो हम डेल्टा एच क्या चीज़ है, इट इज़ डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर, और T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, हम ये लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन इसी इक्वेशन के लिए हम ये भी लगा सकते हैं, तो क्या लिखते हैं, dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। अब जब वेपोराइजेशन होती है, लिक्विड से जब वेपर्स बनते हैं, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर से जब वेपर्स बनते हैं, किस टेम्परेचर बनते हैं, फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट। तो TB इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एंड वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये आ सकता है इसमें, ठीक है। तो दिस इज द वेरियस यूटिलिटी ऑफ दिस Kleystrus-Clapeyron इक्वेशन, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड एनी वैल्यू इफ अदर वैल्यूज आर गिवन फ्रॉम दिस, ठीक है। तो वट इज द होमवर्क फॉर यू, होमवर्क फॉर यू दैट यू हैव लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ योर चैप्टर। यू ट्राई दिस न्यूमेरिकल, आप इन इक्वेशंस में उनको पुट करो, आप उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम लगाया, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम लगाया, तीसरा एक और इक्विलिब्रियम बच गया था हमारे पास, कौन सा, लिक्विड सॉलिड लिक्विड वेपर। वी हैव सॉलिड डायरेक्टली गोइंग इनटू वेपर्स, सॉलिड डायरेक्टली गोइंग इनटू वेपर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा अब कौन सा डेल्टा एच है, सब्लिमेशन डेल्टा एच, अपॉन टेम्परेचर कौन सा, ये सब्लिमेशन टेम्परेचर, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसा हो जाएगा ये, वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं सॉलिड स्टेट ले रही हूँ, वाटर मतलब आइस ले रही हूँ, और इसी के मैं वेपर्स ले रही हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ वेपर्स इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब दिस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो VS को मैं क्या कर सकती हूँ, निगलेक्ट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन इनटू सिंपल वॉल्यूम ऑफ गैस। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो बहुत कम है, तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, निगलेक्ट कर सकती हूँ। तो दीज आर डिफरेंट इक्वेशन। अब देखो, अगर मैं एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में बात करती हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी किया था, वन क्रिस्टलाइन फॉर्म गोइंग इनटू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म। मान लो ये A है, ये है B, ठीक है। मान लो ये है सल्फर रोम्बिक और ये है सल्फर मोनोक्लिनिक। तो हम क्या लिखेंगे, dP अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा एच, कौन सी चीज़ है ये, अब ट्रांजिशन है ये, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, डिवाइडेड बाय कौन सा टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन माइनस वॉल्यूम ऑफ 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ 2, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ द Kleystrus-Clapeyron इक्वेशन, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और आपको इसको डेरिवेशन भी आनी चाहिए एंड न्यूमेरिकल भी आनी चाहिए।